हिंदी में कंफर्टेबल है या इंग्लिश में कंफर्टेबल? विच लैंग्वेज इज मोर कंफर्टेबल फॉर यू? इज देयर एनीवन हियर हु डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश? मतलब कोई ऐसा है जो यहाँ पे इंग्लिश जिसको समझ में नहीं आती हो, हिंदी में जो चाहता है, कोई ऐसा? इंग्लिश सबके लिए कंफर्टेबल है? ओके देन वी कैन. So today's topic is life's final exam. So the topic itself reminded me of one incident that happened in my childhood. I was very young. I think I was maybe in fifth class or sixth class, sixth standard, fifth or sixth standard, and I was in some sort of building and I was looking out of a window and I saw one pigeon, very beautiful pigeon. It was there, very nice feathers, very good neck, very nice shape, well shaped pigeon was there standing. He was there in sunlight. He was kind of, enjoying the sunlight, relishing, मजे ले रहा था वो लाइफ के अपने. अच्छा, he was enjoying, and maybe I think I was also like I was somehow or other meditating on it, that pigeon. I was looking very carefully, what that pigeon is doing and how he is looking here and there and how is he looking. And he was, I think, looking at, some other pigeons were there, some other pigeons were there. Maybe some she pigeon was there, so he was looking at maybe that she pigeon, and he was kind of playing a little bit with its feathers and like that. And I was looking very carefully, very intensely I was looking. I don't know what inspired me to look so intensely. We generally don't look at pigeons so intensely, but in our childhood we can do any foolish thing. So I was also doing that. So I was looking very intensely, that pigeon, very beautiful pigeon playing very nicely, looking at some she pigeon. And suddenly, from behind that wall, one cat came and just grabbed him in his mouth in front of my eyes. And I was a child and I never saw things like that. Somebody getting killed or something like that. So I was shocked, and all I could see was, I could not see his beautiful body or beautiful face or feathers or neck. All I could see was two feathers coming out of cat's mouth, like that. That only I could see. And then I could see the pigeon is struggling to come out of the cat's teeth and looking outside. I guess it was still looking at that she pigeon. Mostly. So all I could see that. And it all happened in such a 5 second period of time, or maybe 2 seconds. The cat came and just grabbed him. So then that incident struck in my heart, and later also in my years I used to think about that a lot, how life is very unpredictable. So let's come to Mahabharat. In Mahabharat, Yamraj asked Yudhishthir Maharaj, what is the most wonderful thing in this world? What is the most wonderful thing? So I want to ask you people, what do you find most wonderful thing in this world? You can share your things. Material opulences. Okay. Anyone else? If somebody knows this incident, then don't raise it. And from anyone, from new people, what do you find most wonderful? Just share your thing. You look around, what is the thing which amazes you the most? Anyway. But I mean, we are close to them, but is it very amazing to you or wonderful?
Happiness. Okay. Anyone else? Nature. Okay. Okay. Anyone else? Maybe you want to share something? So Yudhishthir Maharaj then replied to this question. What is the most wonderful thing? And Yudhishthir Maharaj said, the most wonderful thing is, everyone is dying and we all see, people dying around us. We see our relatives, our parents, our friends, many other living entities, they are dying. But still everyone thinks that I will not die. Every one of us think that ठीक है यार मर रहे होंगे लोग बट मैं तो नहीं मरूंगा एक कहीं पे we have that feeling inside all of us that I will not die. That feeling is there. So Yudhishthir Maharaj said that is the most wonderful thing when we talk about what is happening around us. So that is the most wonderful thing. So let's talk about what this death is. What this death is. So that death actually we never die. As per Bhagavad Gita, our original identity is that we are not this body, we are soul. We are spirit soul. And soul never dies. Na jayate mriyate va kadachin nayam bhutva bhavita va na bhuya. Soul never dies. And there are many in the second chapter there are many places where Krishna verifies this that soul never dies. So what happens with the soul? So Krishna says in Bhagavad Gita, तेनो इसमिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते. Soul just transfers itself from one body to other body. You guys, all of us had a body very young body few years back, body of a child. Then we now have a body of a young person. So soul transferred itself from that body of a child to the body of young person. And after some time, that same soul will transfer itself from this body of a young person to an old body. And what will happen after that? From that body of old person, the soul will again transfer itself from that old body to a new body, young body. So this is happening. So soul never dies. It's the death of the body, but soul never dies. So we all have to give this exam. Is there any one exception who thinks that I will not give this exam in my life, the exam of dying? Each one of us will have to face eventually that. So how to do preparation for that exam? Every exam needs preparation. In this exam there is no scope of doing cheating. There is no scope of copying from the person sitting in front. There is no scope like that, or somehow or other escaping that exam, something like that. There is no scope like that. We all have to give that exam. So how to prepare for that exam? So this life that we have, that we are living, that life is meant for preparing for that exam. This life is there for preparing for that final exam that we all have to give. And what happens after that exam? So, I was just thinking about that pigeon, and I was thinking that, in all of us, in our previous lives, it might be possible that we were that pigeon. And many times we were killed by that cat. Many times. Okay, if not pigeon, then maybe some other insect, maybe some mosquito killed by a lizard or some other thing. But we have been facing these things throughout, our journey here in our previous lives. So, in this life also,
we will give this exam. But this life is very special. This life is very special. Because this life we have got a body of a human. We have got a human body. In animal body, they cannot think about, okay, I will die one day, what should I do? And how I should prepare for that moment when I will die. They don't have, animals don't have that scope of thinking like that. But in human body, we can think about these things. We can think about, okay, there is something called as death, and I've been facing it again and again, but this time I've got human form of life, and I can now prepare for it. I can make the best use of it. I can top that exam like that. And sadly, in today's time, in no university there is a course like that which can tell us the difference between soul and this body, matter and spirit, how to prepare for our final exam, death. There are various departments in all the universities, electrical department, computer science, these management and all these things, but no one is teaching nowadays that how to prepare for death. That's why you see when a person gets old these days, you see, they get from all the mental problems, they get very panic, and they are very anxious, they come in distress, these kind of problems they face. So no, because why? Because nobody taught them how to deal with this very important thing of dying. So what should be our preparation? So it is said in Bhagavad Gita, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्यत्र संशय. कि when one remembers, Krishna says in Bhagavad Gita, if one remembers me at the time of death, then he will come to me. Just like a fire is there, and fire has some sparks, sometimes sparks. Once a spark comes out of the fire, what happens with that spark? It gets extinguishes. No spark after some time. No lightning is there, nothing, no heat is there. After getting separated from the fire, no spark is left. So only the ash particle is there. So if we put that ash particle back into the fire, it will regain its original luster, original light, and it will again start to dance in that fire. So similarly, a living entity, a soul, when it is separated from the super soul, Paramatma, then its life is dull, distressful, like that. But then when it again reunites with the Paramatma, then it regains its blissful nature. So the goal of our life, the objective of our life at the time of death should be to reunite with that Paramatma. And who is that Paramatma? Krishna says in Bhagavad Gita that Krishna is that supreme soul. Krishna says in 5th chapter, Sarvasya Chaham Hriday Sannivishto, and also at other various places, that Krishna is that super soul. But as super soul, Krishna lives in our heart, but Krishna also has a realm, as a place where he lives there, just like spiritual world. If we go there, then we can reunite with him. So how to do that? When we remember Krishna at the time of death. So how to remember God at the time of death? If I say that, okay, let's play cricket, I will do bowling, you do batting, and I will just ball once, and if you hit a 6, I will give you 1 crore. So what should be our next step? And I will do that after 1 week. So if I tell you like that, what should be our next step?
practice. It's not that we will say okay ठीक है, एक हफ्ते बाद अगर हमको करना है तो let's go and sleep and then एक हफ्ते बाद करेंगे. No, the next immediate step would be to practice. We will start practicing. So similarly, now we know that at the time of our death, if we remember, let's say if you remember, cow or a dog, so the body that you will get will be a dog's body. If your mentality is of a animal, you will get that particular animal's body. Sometimes there are people who have too much addiction of non-veg items. They like many of us, they like eating too much of flesh. So what will happen to them after death? That they will get a body of mosquito. Then in that body of mosquito they can suck easily blood, no problem. Nature will give them facility like that. And there are many, especially women in western countries, they like to dress very short dress, they like to wear very short dress, like almost naked. So material nature will say, okay, you want to wear less dress, no problem, we will give you a body of a tree. You be a tree, stand there, no clothes required, and your desire is fulfilled. Like that. Yes, there are in China, there are people who they eat anything. उड़ती हुई चीज, रेंगती हुई चीज, सब चीज they eat. So material nature will say, okay, you want to eat anything and everything, okay, you become pig. आराम से जो खाना है वो खाओ. Like that. So whatever we desire in our life, whatever desires we have, that kind of body we will have. That kind of body. So that means सारा खेल किसका है? Desires का. कैसी हमारी इच्छा है. But there is one more thing. There is also role of karma. Karma means what? Let's say if you desire to eat flesh, then you can get body of mosquito also. But if you have a better karma, then you will get body of a tiger or a lion also. So then two factors are there, desire and karma, which will decide what the next body is. So now I want to ask you personally, which body do you want? Tiger. Okay. And who else? Anyone who wants mosquito's body? I mean, it's nice, it can fly, and I'm sure no one wants to be a pigeon today. Anyone wants to be a pigeon? When that pigeon was caught by that cat, I saw that, that she pigeon, she flew away. यही सेम इंसिडेंट अभी 2 महीने पहले वर्षों को हमें विंडो से बाहर देखना था, कबूतर बैठा हुआ था, ईगल आई फटाक करके उठा के उस सामने. Maybe what we should do is we should stop looking out of windows now. Every now and then things like that are happening. So what body should we desire now? What should be our desire? Human body. Why? Because this is the only body from where we can worship God. Yeah. Where we can worship God, but what is the purpose of worshipping God? To get moksha, you can able to To get get- closer to it. You can able to get more closer to God by worshiping. And why get moksha? And moksha means what? Free from savage. And then? And new people have any idea? What happens in moksha? जन्म नहीं लेना पड़ता. But then सब कहीं तो रहेंगे ना हम लोग. कॉन्शियसनेस में कृष्णा. But see, the soul is an individual, and
it will remain an individual. It's not that कि वो कहीं पे जाके मिक्स हो जाएगा एंड द इंडिविजुअलिटी इज गॉन, हमारा एग्जिस्टेंस खत्म, देयर इज नो पर्सन लाइक मी, अभी खत्म. सोल नेवर डाइज, so soul will remain individual. So even after death, even what we say is moksha, after getting out of this cycle of birth and death, भी ऐसा नहीं है पॉसिबल कि हम लोगों का इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाए, एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है. हम लोग रहेंगे. पॉइंट इज कि हम लोग रह के करेंगे क्या, मतलब व्हाट विल बी आवर एक्टिविटीज, और कहाँ रहेंगे हम लोग. भगवान के नाम में रह के भगवान की सेवा करेंगे. बट हु वांट्स टू सर्व, वी ऑल वांट्स टू बी गॉड, नोबडी वांट्स टू बी अ सर्वेंट ऑफ गॉड, राइट. बट we see from various examples that in our day to day life also, how do we get pleasure? We get pleasure not by watching television or something like that. ये तो साइड में है. एक्चुअल प्लेजर अगर हम देखें इस संसार में हमको मिल रहा है इज बाय सर्विंग अदर्स. कई लोग बोलते हैं आई एम स्टडिंग हार्ड, व्हाई, बिकॉज आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय पेरेंट्स. I am doing this because I want to do something for my wife, my children. That's how a person gets happiness, by serving others. फिर बाद में हाँ ये अलग बात है कि बाद में जब पता लगता है कि यार वाइफ और चिल्ड्रन को सर्व करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर वो बोलता है कि ओके आई वांट टू सर्व द सोसाइटी, एनजीओ खोलूँगा. फिर बाद में हालांकि उसमें भी फिर बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. तो अल्टीमेटली सर्व करना है. सो वी वांट टू अटेन दैट position where we can serve. Whom we have to serve? Why God? Why not? So Srila Prabhupada says, if you don't serve God, then you will serve dog. It's like that. And we see also, earlier in our homes, everyone was having a temple. कुछ एक छोटा एक प्रोग्राम होता था, शाम को सब घर वाले साथ में आके पूजा करते थे, ऐसा होता था. बट अभी वो मंदिर तो सब ने हटा दिया है, लेकिन अभी घर में हर घर में क्या आ गया है, कुत्ता आ गया है. अभी पहले होता था कि भगवान का सब लोग घर में ऐसे पूजा करते थे, आरती करते थे, अभिषेक करते थे पूरा भगवान को सुबह सुबह ऐसे. अभी क्या होता है, मैं देखा है बड़े बड़े अमीर लोग कुत्ते को सुबह सुबह नहला रहे होते हैं, कुत्ते की सुबह सुबह पूजा कर रहे होते हैं, उसको खिला रहे होते हैं. और कुत्ते का इतने मजे हैं, कुत्ता आराम से मालिक के बेड पे सो रहा है. कुत्ता आराम से मालिक, इनफैक्ट मालिक डेली का जॉब पे जाता है काम करने के लिए, मेहनत करता है, मेहनत से पैसा कमाता है, और ताकि एक आदमी रखा हुआ है सुबह सुबह ताकि कुत्ते को टहलाने के लिए लेके जाए, क्योंकि उसकी सैलरी देनी है ना 8,000 रुपये, 8,000 रुपीज ही इज टेकिंग. How we will give? We have to work hard for it. So it is said that if we will not serve God, we will have to serve dog. Service needs to be done. So if we remember God, Krishna at the end of our life, then we will go to the spiritual world, and we will be free from. In Bhagavad Gita it is said that human body has 4 problems: Janma, Mrityu, Jara, Vyadhi, Dukh, Doshanu, Darshanam. Janma means like birth. How many of you think birth is a nice thing? When a children is about to be born, he is in the womb of his mother or her mother. Then in the womb, if you see, X-ray if you take, in the womb there are many small, what do we say, worms are there, which bite the skin of the child. If mother is eating, some very spicy food, then it will hurt the skin of the child. अगर मम्मी ने आज गोलगप्पे खाए हैं तो बस बैंड बज गई आज उसके बच्चे की. So it's like that. So birth, 9 months he has to live. 9 months he has to live in a small cage.
So if I tell you, okay, not 9 months, just live in this room, big room, it's a big room, for let's say 5 days. Are you ready to live? You cannot get out of this room. You'll have to live here. Nobody will be able to live. Now imagine living in a small cage for 9 months. And then tries to get out of that place. It kicks like that. And when it kicks, sometimes we see in movies and also, then जो औरत रहती है वो बोलती है, oh my baby kicked me, and they start to celebrate it. Oh wow, it's such a nice thing, my baby is kicking. और अंदर बच्चा क्यों लात मार रहा है, अरे बाहर निकालो यार, कहाँ फंसा दिया मेरे को इधर. So it's such a dangerous place. जन्म. एंड देन फिर आदमी होता है, जवान होता है, ठीक है, फिर सबको बुढ़ापा आता है. बुढ़ापा कितना खतरनाक होता है. कभी आप लोग किसी बुजुर्ग आदमी से मिलना, वो बोलेगा यार लाइफ में पैसा भी कमा लिया, सब कुछ है, लेकिन अब एंजॉय करने के लिए उस पैसे को शरीर ही नहीं है, क्या करूं. बुढ़ापा बहुत खतरनाक. डिजायर तो उसकी सारी की सारी वही है, इच्छाएं, लेकिन अभी वो कर नहीं सकता है, तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है. फिर मतलब सोचो कि मैं आपके सामने देसी घी का हलवा रखूं और आपको भूख ही नहीं है, क्या होगा आपको. खैर आप लोग मुंबई के लोग हो तो पता नहीं ये जोक से रिलेट कर पाए होंगे नहीं, देसी घी ऑल दिस थिंग्स. तो गांव के लोग होंगे उनको पता होगा. एक चीज होती है देसी घी. घी तो सबने सुना है ना आप लोगों ने. आफ्टर सम टाइम हम लोग सब ये भूलने वाले हैं घी दूध वगैरह. तो बुढ़ापा ये हुआ. फिर बीमारी सबको आती है, हर किसी को बीमारी आती है. कई बार तो ये सब बीमारी जो होती है ना, जॉन्डिस, टाइफाइड, इतना सीवियर फीवर हो जाता है, ऐसा लगता है बस अब गया यार, अब मरने का समय आ गया. हुआ होगा ना आप सबको बीमारी, कितना बेकार लगता है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. और फिर मृत्यु के बारे में it is said that the pain that one person feels at the time of death is equivalent to 40,000 scorpions biting at once. Scorpions. आप में से किसी को स्कॉर्पियन बाइट किया है? आप लोगों ने देखा ही नहीं होगा. क्या होता है स्कॉर्पियन? तो ऐसा क्या बोल रहे हैं? केकड़ा. तो एक बिच्छू होता है. अच्छा, बिच्छू से पहले मैं बताता हूँ, एक सांप होता है. सांप तो पता है ना. तो इतना दर्द होता है बिच्छू के काटने से, बहुत पेन होता है. एक बिच्छू भी काट लेता है तो आदमी उछल के पागल हो जाएगा, इतना तेज पेन होता है. अभी 40,000 बिच्छू काटते हैं, इतना दर्द होता है मृत्यु के टाइम. सो ये 4 प्रॉब्लम्स होती है. तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको. तो एक बार क्या होता है, एक साइंटिस्ट होता है. तो वो साइंटिस्ट ना नासा का साइंटिस्ट होता है. नासा से आ रहा होता है, मतलब अपने अमेरिका के ऑफिस से, और अपने बिहार में पढ़ाई कर रहा था. बिहार का रहने वाला था, लेकिन पढ़ाई करके अभी नासा में पहुंच गया वैसे. तो फिर आता है उधर, तो नदी रहती है सामने. तो अब क्योंकि अमेरिका में रह के आया है 15-20 साल, तो कुछ ज़्यादा ही थोड़ा एटीट्यूड भी आ गया उसके अंदर. तो बोलता है, उधर नाव वाला रहता है, नाव वाला अपने आराम से उधर नदी के किनारे भजन कर रहा होता है, नदी को सही कर रहा होता है. तो नाव वाले से बोलता है, हे गवार, ये नदी को कैसे पार करना है, बता मुझको. तो बोलता है, पहले तो इंग्लिश में बोलता है, हाउ टू क्रॉस दिस रिवर. फिर बोलता है, वो नाव वाला बोलता है, भैया कहाँ बोल रहे भैया, पगलेट हो गए हो कहाँ बोल रहा है, कौन विलायत से आए हो का. तो वो बोलता है, फिर कैसे पार करना है इसको. फिर वो बोलता है, भाई अरे दिख नहीं रहा का, अंधा है का, नाव है इधर नदी है, तो कैसे पार करेगा. तो फिर बोलता है कि तुम पार कराएगा मेरे को. तो बोलता है, हाँ कराएगा. इतने रुपए लेगा, 40 रुपए. तो बैठ जाते हैं. तो
नाव चल रही होती है, फिर वो क्योंकि अब पढ़ के आया तो भाई थोड़ा सा दिखाना भी है। जब तक आपने एजुकेशन लिया है और शो ऑफ नहीं किया तो फिर एजुकेशन का क्या फ़ायदा। तो पूछता है उससे, डू यू नो, फिर वो बोलता है ना वाला, हिंदी में बात करनी है तो बात कर। तो वो बोलता है कि तेरे को पता है ये चांद तारे वगैरह ये सब कैसे काम करते हैं, क्या तेरे को पता है, यू नो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, यू नो एस्ट्रोनॉमी। तो बोलता है हमका तो कुछ नहीं पता है। तो बोलता है गंवार, योर 25% लाइफ इज वेस्टेड। बोलता है ठीक है भाई। वो अपने आगे चलता रहता है भजन करते करते, हरे कृष्णा ऐसे करते करते आगे बढ़ता रहता है। फिर बोलता है साइंटिस्ट, यू नो फिजिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, दीज थिंग्स। तो बोलता है नहीं हमको तो ये भी नहीं पता है। तो बोलता है कि तुम्हारा तो 50% लाइफ वेस्ट है। फिर वो बोलता है ठीक है भाई होगा वेस्ट, अभी क्या करें। ना वाला फिर चलाता रहता है आगे। फिर बोलता है यू नो बायोलॉजी, बायोटेक, यू नो वी हैव माइक्रोस्कोप, वी एनालाइज बैक्टीरियाज, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनको हम देखते हैं, सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, दीज थिंग्स, ये सब पता है तुमको। बोलता है हमका तो कुछ नहीं पता है, हमका तो बस हमारा पत्नी के बारे में पता है और दो चुन्नू मुन्नू उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं। तो बोलता है योर 75% लाइफ इज वेस्टेड। बोलता है ठीक है भाई। फिर वो आगे चल रहा होता है। फिर क्या होता है ना, ऐसे लाइफ नौका ना थोड़ा डगमगाने लगती है, ऐसे हिलने लगती है और थोड़ी सी ना हवा चलने लगती है और थोड़ा आवाज़ आने लगती है नदी में से जोर से ऐसा करके, और थोड़ा और नौका ऐसे ऐसे होने लगती है। फिर साइंटिस्ट पूछता है क्या हो रहा है भैया, क्या हो रहा है। तो नौका वाला पूछता है कि भैया हमका एक क्वेश्चन पूछना था तुमसे, आपको तैरना आता है क्या। तो वो बोलता है नहीं तैरना तो मेरे को नहीं आता है। फिर वो नौका वाला बोलता है ये लो एक बार पकड़ो, ये चप्पू पकड़ो। फिर वो कूदते बोलता है नाउ योर 100% लाइफ इज लाइक दैट। सो ऐसा ही है, कई बार हम जो एजुकेशन ले रहे हैं, हम जो जीवन जी रहे हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट जो पर्पस है वही फुलफिल नहीं हो पा रहा है लाइफ का, तो फिर ये सब चीज़ें 100% लाइफ क्या है, वेस्ट है। तो वैसे ही है, तो हमको मेनली उस चीज़ के लिए तैयारी करना है, अंत जो हमारा समय है उसके लिए। अब ऐसा नहीं है कि अंत समय के लिए तैयारी करना है तो मतलब सब कुछ छोड़ के हम हिमालय चले जाएं, ऐसा भी शास्त्रों में रिकमेंड नहीं है। अर्जुन ने बोला था युद्ध छोड़ के चले जाता हूँ जंगल, वही बेस्ट है। कृष्णा ने क्या बोला, नो यू फाइट। लेकिन फाइट कैसे करना है, माम अनुस्मर युद्धश्च, मेरे को रिमेंबर करते हुए फाइट करो। तो उससे क्या होगा, जब हम लाइफ टाइम प्रैक्टिस करेंगे कृष्ण को, भगवान को रिमेंबर करने की, याद करने की, तो जब लास्ट एक बॉल पे छक्का मारना होगा, यानी कि डेथ के टाइम पे रिमेंबर करना होगा तो आसान पड़ेगा। अब मान लो लाइफ टाइम हमने रिमेंबर किया है कुछ और चीज़ को, शाहरुख खान को रिमेंबर किया है, अब मरने वाले हैं तो क्या हमको भगवान याद आएंगे, कृष्ण याद कर, तो भी याद यही आएगा कि यार पठान एक बार ही देखी है यार, वो फर्स्ट शो मिस कर दिया था उस दोस्त की वजह से, तो भी यही याद आएगा। तो ऐसा, तो अभी तक हमने जो कुछ भी डिस्कशन किया है, अभी आपका कोई क्वेश्चन या कमेंट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन दो केस में अराइज नहीं होता। एक केस तो वो होता है जब सब समझ में आ गया हो, अब पता लग गया बॉस क्या करना है, बस अब समझ गया। और दूसरा केस वो होता है जब कुछ समझ में नहीं आया होता। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि शायद पहला केस ही होगा।
यस। तो वो आपने बोला कि 40,000 बिच्छू का बोला ना आपने, वो जब बॉडी लीव करते हैं तभी का है ना? हाँ। वो पेन तभी होता है ना जब बॉडी लीव करते हैं? यस। 40,000 बिच्छू। यस। जी आपने जैसे बताया कि मतलब अभी मालूम है क्या मतलब है तो, लेकिन फिर उसको प्रैक्टिस में कैसे आना है? प्रैक्टिस में कैसे लेके आना है? तो प्रैक्टिस में लाने के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक तो वो लोगों से संपर्क करना है जो ऑलरेडी उस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चीज़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसीलिए तो बोला जाता है हमारे वैदिक जो सभ्यता थी उसमें क्या था मेन चीज़, लोग साधु संतों से आदेश लेते थे, परामर्श लेते थे, उनसे सुनते थे, उनसे प्रवचन सुनते थे। मेन तो हमारे वैदिक सभ्यता का यही था पहले। अभी ये तो नष्ट हुआ है। अभी हम लोग साधु संतों के प्रवचन को सुन के और पॉलिटिशियन का प्रवचन सुनते हैं और किस किस का प्रवचन सुनते हैं अलग अलग, है ना। लेकिन पहले क्या था, सेंटली लोगों से सुनते थे, तो वो उन लोगों से सुन के हमको पता लगता था कि हाँ यार क्या करना है। दूसरा, स्क्रिप्चर से पता लगता है हमको। भगवत गीता, हर आदमी को भगवत गीता कम से कम एक बार तो पढ़नी चाहिए। वो कब पढ़नी चाहिए? वो जब ये मशीन जो है सही सलामत है तब पढ़नी चाहिए, जब इसका बेड़ा गर्क हो जाए तब पढ़नी चाहिए। अभी आँख काम कर रही है, दिमाग काम कर रहे हैं तो पढ़नी चाहिए इसको। जब आप मशीन लेके आते हो, कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, उसके साथ एक छोटी बुक आती है ना, क्या बोलते हैं उसको? इंस्ट्रक्शन बुक। उस इंस्ट्रक्शन बुक को कब खोलते हैं हम लोग? जब मशीन नहीं लेके आते हैं तब खोलते हैं ना उसको। या मशीन जब खराब हो गई, अब चलो खराब करके पैक करके रख दिया उसको स्टोर हाउस में, अब खोल के पढ़ता हूँ मैं कैसे चलानी है मशीन। ऐसा नहीं है ना, जब मशीन नया है तब पढ़ते हैं। कई लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो क्या एज है तुम्हारा ये सब किताबें पढ़ने का बचपन में, कब पढ़ना है इसको, ये कब पढ़ेंगे अगर अब नहीं पढ़ेंगे तो। कई लोग, ऐसा है मैंने देखा है, कई बार कई बुजुर्ग लोग आते हैं हमारे पास, अरे बेटा ऐसा है तुम पढ़ाई वढ़ाई करो, ये क्या पढ़ रहे हो ये गीता भागवत, ये तो बुढ़ापे में पढ़ते हैं, बुढ़ापे में भजन वगैरह करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ ठीक है चलो मैं नहीं करूँगा, लेकिन अभी आप तो बुजुर्ग हो, आप तो कर सकते हो। वो नहीं करेंगे वो लोग। अभी भी वो, उनको ये है, टेंशन है कि बच्चा सही है नहीं, परिवार, ये सब, देश में मोदी जी आएंगे या नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम पे। मतलब मोदी को और योगी को पता है या नहीं है कि नेक्स्ट टाइम गवर्नमेंट किसकी आएगी, लेकिन इन लोगों ने चौपाल पे बैठ के पूरा डिसाइड कर लिया किसकी आएगी। तो ये सारी चीजें बचपन में करने की हैं। बचपन में वैसे तो 5 साल की उम्र से प्रहलाद महाराज बोलते हैं करनी चाहिए, लेकिन अभी हम यंग हैं, हमको अभी करना चाहिए। अभी हमारा मशीन सही काम कर रहा है, तो ये लाइफ का मैनुअल जो भगवत गीता है अभी पढ़ना चाहिए। बाद में क्या लगता है आपको, ये ऐसे समझ में आ जाएगा भगवत गीता। ये समय है तैयारी करने का, जिस समय पे करना चाहिए। अभी हम फ्रेश हैं, यंग हैं, अभी हमको पढ़ना चाहिए ये सारे किताबें। कब पढ़ेंगे हम लोग? बुढ़ापे में तो भूल जाओ। और बुढ़ापा देखा किसने? जरूरी थोड़ी ना बुढ़ापा आएगा ही, तो जरूरी नहीं है। तो ऐसे हमको किताबों से और सेंटली लोगों से, डिवोटीज से सुन के हमको पता लगता है। और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु। सर आपने कहा कि देश सबकी आएगी, मतलब मेरी आपकी, तो सर ये हम भूलते क्यों, लाइक कि अभी मैं यहाँ से बाहर गया, अभी ये कि चलो घर जाओ, कल ऑफिस है, ये है वो है, भूल गया मैं, लाइक ऐसा क्यों सर? तो आपने देखा है कई बार कई लोगों को ना डायबिटीज होता है और डॉक्टर स्ट्रिक्टली मना कर देता है मीठा नहीं खाना है, मर जाएगा अभी तू, तेरा लिवर गया, तेरी किडनी गई, अभी नहीं खाना है मीठा।
फिर भी कई बार उनका मन कर जाता है और मीठा दबा के, जब घर में कोई नहीं होता ना, फिर इससे निकाल के पेड़ा खा लेते हैं। क्यों? वो क्यों होता है? वो तो पता है ना उसको, तो क्यों होता है ऐसा? हाँ, माइंड माइंड पे कंट्रोल नहीं है हमारा, एक तो ये रीजन है। माया। हाँ, माया तो माइंड के थ्रू ही काम करती है। माया जो होती है माइंड के थ्रू काम करती है। दूसरा क्या रीजन है? लस्ट एंड ग्रीड, हाँ वो तो है ही। हृदय दौर्बल्यम, हृदय जो है वो दुर्बल है। हार्ट, वीकनेस ऑफ हार्ट। कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं, अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं। हृदय दौर्बल्यम, वीक, हार्ट वीक है, इस वजह से होता है। और हार्ट वीक क्यों होता है? क्यों होता है हमारा हार्ट वीक? यस, बट मेन रीजन इज हार्ट इज वीक बिकॉज ऑफ प्रीवियस इनपायस एक्टिविटीज, सिंफुल एक्टिविटीज। कोई आदमी बहुत ज़्यादा पाप करता है ना, तो इस वजह से हार्ट वीक होता है, इसलिए वो डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। और हमारे अंदर वो टेंडेंसी है ही कि हम लोग सच से दूर भागना चाहते हैं ना। सच मत बताओ मुझे। अभी आप लोग तो चलो सुन रहे हो, बाहर के आदमी को बोलो कि भाई तू मरेगा, कैसे बोल दिया तूने मेरे को मैं मरूंगा? वो पूरा प्लान करके बैठा है कि अब इधर 10-20 हजार साल रुकूंगा, इधर पूरा देख के जाऊंगा अयोध्या का राम मंदिर कैसे बनेगा, और वो मथुरा में भी जन्मभूमि बनवाऊंगा, और बनारस में भी वो ज्ञानवापी मस्जिद तोड़वाऊंगा। सब सोच के बैठा है वो। तो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो इस वजह से होता है, बहुत सिंफुल रहते हैं हम लोग, पाप किए होते हैं पुराने, इसलिए नहीं मानता है। झूठ, सच को झुठलाने की हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है हमारी इस भौतिक संसार में, कि हम इल्यूजन में जाते हैं, वी फॉल इनटू माया। तो वो टेंडेंसी है। तो क्या इसका रेमेडी क्या है फिर? इसका रेमेडी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये जो कान पकड़ना है तो उसको ऐसे करके और ऐसे कुछ करो, और कुछ पहाड़ों पे जाके कुछ तपस्या करो, एक पैर ऊपर उठा के और भंगड़ा करना है, कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हमको भगवान का नाम जप करना है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। उसमें रामचरितमानस में लिखा हुआ है ना। कोई पढ़ा है रामायण आप लोगों में से? कौन पढ़ा है? तो हम लोगों का अब टाइम आ गया है, हम लोगों को फेसबुक व्हाट्सएप पे स्टोरीज पढ़ना बंद करना पड़ेगा, और अब हमको अपने स्क्रिप्चर्स उठाने पड़ेंगे, रामायण महाभारत। और जिसमें क्या लिखा हुआ है? कौन सा भगवान का नाम लिखा हुआ है? हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करना है। बस स्मरण करने का मतलब क्या है? भगवान को, भगवान का नाम जप करना। नाम जप करोगे तो भगवान अपने आप हमको आके बचाएंगे। अब ऐसा नहीं है ये कोई थ्योरेटिकल चीज है जो ठीक है यार कोई लाखों में से कोई एक आदमी कर पाता होगा। अब कौन करे, कौन कर पाएगा पता नहीं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं, हम लोग इस्कॉन में देखते हैं हमारे डिवोटीज को, वो लोग अपना लाइफ में हरे कृष्णा का जप करते हैं, और देखा है हमने हमारी आंखों के सामने कि जब शरीर छोड़ रहे होते हैं तभी भी हरे कृष्णा उनके मुख से निकलता है, ऐसे छोड़ते हैं शरीर। प्रैक्टिकल चीज है, सामने देखा चीज है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये कभी, तो स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे एविडेंस है। परीक्षित महाराज हैं और ये सब लोग बड़े बड़े महर्षि जो हुए हैं, ये सब लोगों ने ऐसे ही अपना जीवन भगवान की भक्ति में जिया है। तो एट द एंड ऑफ देयर मूवमेंट दे वर एबल टू रिमेम्बर कृष्णा। आया ना ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, दे वर किंग्स एंड नारद मुनि गेव देम इंस्ट्रक्शंस, नाउ दे सक्सेसफुली डिड देयर डिवोशनल सर्विस, रिमेम्बर्ड कृष्णा at the time of death and escaped from this material world. So it's not something very theoretical और पता नहीं it happens or not, और पता नहीं ऐसा होगा या नहीं। It is very practical, very practical. Yes. Any other question?
एक सवाल है, मतलब 2 दिन पहले मतलब वैसे ही नॉन वेज में डिबेट चल रही थी एक फ्रेंड के साथ, तो उसने कहा रामायण में जब रामायण टीवी पे आता था तो श्री राम शिकार करने जाते थे, वनवास पे जाते थे, तो वो भी तो मतलब तो शिकार करके उसको खाते थोड़ी ना थे वो। बोला मतलब राम तो लिए उसने। तो क्या होता था पहले के टाइम पे, इसके दो रीजंस हैं। पहले के टाइम पे सेंटली पीपल जंगल में जैसे तपस्या करने के लिए जाते थे। अब क्या है, अभी तो शेर वेर कुछ है ही नहीं, तो हम पूरा फोर्स लगाना पड़ता है यार। अगर एक टाइगर भी दिख जाता है ना उसमें, तो गवर्नमेंट पूरा कैमरा लगा देगी, 5-6 लोग बैठा देगी कि इसको बचाओ, कोई शिकार ना कर ले, इसका एक ही बचा हुआ है। अभी तो ये है। पहले क्या है, जंगल थे तो बहुत तादाद बढ़ जाती थी शेर वगैरह इन लोगों की, और गांव में घुस जाते थे बहुत सारा। कई बार ऐसा हो जाता था, गांव के मवेशियों को खा जाते थे, साधु संतों को परेशान करते थे। तो एज ए क्षत्रिय, एज ए किंग, उनका ये ड्यूटी है कि अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करें, ये उनका ड्यूटी है। तो उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए वो राजा लोग शिकार के लिए जाते थे, क्षत्रिय। और फिर उनको युद्ध करना है तो उसकी प्रैक्टिस भी करनी होती थी, तो उसके लिए भी वो लोग, तो उनको शास्त्रों में अलाउड है, लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि मतलब बंदा धुंधा भी दिन रात। एक राजा ऐसा भी हुआ था, तो दिन रात कई शेरों को किसमें बुक में है ना, एक कौन सी बुक में है, टाइगर किंग करके एक बुक, एक चैप्टर था, एनसीईआरटी की बुक में था शायद या किसी बुक में। तो उसे 100-200 शेर ऐसे ही बहुत कम टाइम पे मार दिए। और वो क्या करता था, इतना उसको शेर मारने का इतना शौक था, आसपास के राजाओं को बुला बुला के बोलता था मेरे राज्य में शिकार करो, शेरों को मारो। ऐसा तो ऐसा भी नहीं, लेकिन किंग्स को ऐसे अलाउड होता था। और वो उसका भी रीज़न है कि सेंटली लोगों को, प्रजा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनको करना है ये युद्ध की प्रैक्टिस करनी है, तो उनके लिए कुछ अलाउड, थोड़ा बहुत अलाउंस है। Yes. जब हमारी डेथ होती है तो दूसरे घोड़े में जाने को कितना टाइम लगता है, मतलब क्या प्रोसीजर होता है? प्रोसीजर उसका क्या होता है कि ये प्रोसीजर जो डिटेल्ड प्रोसीजर है, तो आप भागवतम पढ़ोगे तो तीसरे स्कंद में पूरा डिटेल में बताया हुआ है कैसे आदमी मरता है, उसके बाद में क्या एक्सपीरियंस करता है, उसके बाद में फिर कैसे दूसरे मदर की गर्भ में प्रवेश करता है। वो पूरा प्रोसेस श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में डिटेल में अच्छे से वर्णन है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा क्लास में, तो इतना आपको बता भी नहीं पाऊंगा। तो आप आराम से उसमें पढ़िए भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता नहीं, भागवतम, है ना, पता है ना आपको। तो उसमें आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हो कैसे होता है वो, पूरा प्रोसीजर क्या है। और किसी का कोई क्वेश्चन पिछली क्लास से, या कोई और आपका कोई स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई डाउट हो, या लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो पूछ सकते हो आप लोग। भगवान ने अर्जुन को बोला कि युद्ध करते हुए याद करो, हाँ, स्मरण करो, तो हम कैसे करेंगे? स्मरण कैसे करेंगे? हम लोग स्मरण कैसे करेंगे, तो जैसे एक वाइफ होती है, जब हस्बैंड ऑफिस से आता है, आप में से कोई मैरिड है क्या? अच्छा, तभी थोड़ा हंस रहे पा रहे हो तुम लोग। ठीक है। तो जब वाइफ होती है, वो हस्बैंड आया थका आ रहा, और हस्बैंड वाइफ को बोलता है खाना बना, चल रोटी बना, और आज मैं पूरन पोली बना आज इसमें। तो जब वो पूरन पोली बना रही होती है, तो क्या उसको अपने दिमाग को फोर्स करना पड़ता है कि हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, या उसको याद करूँ? अपने आप पूरन पोली बनाते वक्त उसको याद रहेगा कि हाँ यार ये, क्योंकि वर्क जो है वो उसके लिए हो रहा है, तो इट्स नेचुरल फॉर। सो व्हेन वी डू एनी एक्टिविटी एंड वी नो दैट आई एम डूइंग दिस फॉर कृष्णा, so that's how we will be able to remember Krishna. So we have to do work for Krishna, like that. और दूसरा क्या होता है कि हम लोग कोई भी वर्क करते वक्त, कोई भी, कई बार, ज़्यादातर तो वर्क ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग वर्क करते वक्त हरे कृष्णा चैंट कर सकते हैं। आप अपने क्या बोलते हैं, जैसे कई लोग मशीन पे काम कर रहे हैं कुछ, है ना, सिलाई कर रहे हो आप, कोई टेलर है, मशीन पे काम करते करते हरे कृष्णा गा सकता है। जैसे वो बोटमैन था, वो हरे कृष्णा गाता था। पहले के लोग ऐसे थे, हरे कृष्णा गा सकते हो आज कभी भी कुछ भी काम कर रहे हो तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और किसी का कोई प्रश्न?
भगवान होते हैं नहीं होते हैं, तो वो तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बोलो हाँ होते हैं। वो ऑब्वियसली वो प्रूफ हो जाएगा तो सही, कैसे होते हैं प्रूफ बताओ वगैरह ये सब शुरू हो जाता है पूरा। हाँ, तो फिर आप उसके लिए पहले आपको आपके अंदर बिलीफ होना चाहिए, आपके अंदर फेथ जनरेट होना चाहिए, तब जाके आप किसी और को कन्विंस कर सकते हो। तो पहले हमको कन्विंस होना है कि यस कृष्णा इज देयर, और प्रैक्टिकली हमने एक्सपीरियंस किया है भगवान का प्रेजेंस, देन यू विल बी एबल टू कन्विंस। इफ आवर फेथ इज नॉट देयर, आवर फेथ इज शेकी, तो हाउ वी विल बी एबल टू generate faith in some other person? And then there are various arguments, logics, proofs which are given in scriptures. So if you start reading little bit, then you will be able to convince them. Not a big issue. नास्तिक लोग, बट कई नास्तिक लोग ऐसे होते हैं जो पूरा डिसाइड ही करके बैठे हैं कि भगवान भी सामने आ जाएगा तो भी नहीं मानेंगे। जैसे दुर्योधन के साथ क्या हुआ था, भगवान तो आ गए थे ना सामने और दिखा भी दिया था विराट रूप, तो भी माना थोड़ी ना, तो भी इसकी बुद्धि कैसे काम की, अरेस्ट कर लो इसको, अरेस्ट कर लो। ऐसे भी लोग होते हैं, तो वो लोग कुछ समझने वाले नहीं होते। और सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि अगर कोई आपको लगता है कि हाँ इसको कन्विंस करना है, इसको समझाना है, ब्रिंग देम टू दिस क्लास ISKCON टेम्पल। Here devotees are there, make him meet to devotee, devotee will convince him. If he is an innocent person, he genuinely wants to know, तो अगर वो आदमी नहीं है वैसा तो फिर कैसे। बट हर किसी पे हमको एक चांस देके देखना चाहिए। Any other question? All right then. Thank you very much. Yes, one last, I think. I don't know how much time we have. इसलिए आदमी ने बाइसेंस थोड़ी देर में जन्म भर उसने गलत कर्म उसको बताया नहीं था कि भगवान में भक्ति करके हम जा सकते हैं। उसने गलत कर्म किए, लास्ट में एंड मोमेंट में उसको मालूम पड़ा कि हाँ कृष्णा भगवान का नाम लेके हम छुटकारा पा सकते हैं जन्म चलते। लेकिन उसने पूरा जन्म अपना गलत कर्म किया, गलत काम किया, तो मृत्यु के टाइम भगवान को याद करता है तो कहाँ पहुँचता है? मृत्यु के टाइम पे अगर उसने भगवान को याद कर लिया है तो फिर वो भगवान के धाम अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर भगवान को अंत काल में याद कर लिया है तो भगवान के धाम जाएगा वो। हाँ, तो इसलिए तो ये जो आप केस बता रहे हो ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल केस है, मतलब ऐसा जनरली होता नहीं है। कोई आदमी पूरे लाइफ टाइम गलत काम करे और फिर एंड में याद कर ले। जनरली जब तक या तो किसी सेंटली पर्सन की स्पेशल मर्सी आ जाए, भगवान की स्पेशल कुछ कृपा हो जाए, उसके ऊपर मर्सी मिल जाए, अनलेस ऐसा हो जाए तो फिर भी हो सकता है, अदरवाइज जनरली ऐसा हो। इसीलिए तो अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। और खैर वो तो आदमी बुजुर्ग था, उसको तब जाके पता लगा। अभी हमारा फॉर्चून है कि हमें अभी पता लग गया है ना। तो अभी हमारी क्या ड्यूटी है, अब हम ये भी नहीं बोल सकते भगवान को कि भगवान यार मुझे पता नहीं था, देखो ऐसा। अभी आप लोग ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे, अभी आप सब लोगों को पता है ये करना है। तो क्या होता है कि मृत्यु के समय में देखो ऐसा नहीं है कि डिवोटी जो होता है उसको मृत्यु नहीं आती है। जो कैट होता है, कैट का हमने एग्जांपल लिया, कैट जो होती है तो वो मुंह से चूहे को पकड़ती है, ठीक है, चूहे को मारने के लिए पकड़ती है वो, लेकिन सेम मुंह से वो अपने बच्चों को भी पकड़ती है। कई बार बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए कैट उसी मुंह का इस्तेमाल करती है। ऐसे ही जो मृत्यु होती है ना, वो जो नॉन डिवोटीज होते हैं उनको तो क्रश कर देती है, उनके लिए पेनफुल होती है, उनको दोबारा मटेरियल वर्ल्ड में लेके जाती है। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं उनके लिए मृत्यु एक चांस होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने का, एक पड़ाव होता है ऐसा। तो अभी हम लोग जाएंगे, हम लोगों को पता लग चुका है अभी क्या करना है। सो ऑल द बेस्ट, है ना। और तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप लोग प्रसादम के टाइम पे पूछ सकते हो, ठीक है। हरे कृष्णा।
Akshu Guru for this glorious lecture by chanting the holy name of Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. शुरुआत में सीधा रहता होता है लेकिन हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे ना हरे कृष्णा चैंट करना और बुक्स पढ़ना डिवोटीज के साथ टाइम स्पेंड करना धीरे धीरे वो वाला थॉट्स अपने आप बंद होगा। कई बार ना ऐसा काम करें ना काम के टाइम भी मन शुरुआत में चैंटिंग नहीं करेंगे आफ्टर है भाई थोड़ा टाइम लगेगा आफ्टर है काम करते हैं वो में भी नहीं लगता है बाद में अगर धीरे धीरे आप प्योरीफाई हो गए तो आप कृष्णा के प्रति आपकी अलग से कोई योगा करने की आवश्यकता नहीं। गीता में लिखा हुआ है लेकिन गीता में लास्ट में जो गीता चैप्टर के लाइन में लिखा हुआ है कि एक्चुअल जो योगा है ना वो वही है कृष्ण योगा का योगी नाम अपनी जैसा आप कहते हैं कितना टाइम के लिए आशीष वो कर रहे पहले